क्या पी रहे हो तुम लोग? विस्की ग्लास में जूस। जूस ग्लास में जूस। I'm having a whiskey glass में नींबू पानी. नाइस, चीयर्स गाइस। Cheers. Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello guys, welcome to the new podcast. So we have finally decided on the name of the podcast. It's going to be Hold My Drink. We'll all be having a drink while having the podcast, while we share our personal stories and we talk about some random things. Let me invite Tanya and Pramod. You guys have already met them last time. Hey guys, what's up? Hi. So, हाँ दोस्तों, so what I was thinking was that COVID में ऐसे ही घर पे बंद है. Basically, we don't have to go to the office with this WFH. It kind of resembled summer vacations. School को मैं office से relate कर रहा हूँ कि रोज उठो जाओ वापस आओ. Some similar thing. I thought it will be nice to remember our school days. So that is going to be the topic of our discussion today. But before that, please tell me, what are you guys drinking? क्या पी रहे हो तुम लोग? विस्की ग्लास में जूस। जूस ग्लास में जूस. I'm having a whiskey glass में नींबू पानी. Correction, रसना ग्लास में जूस. You guys remember रसना? उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था जब हम लोग स्कूल में थे. Actually, Rasna is a school memory because Yes. it used to be so hot दोपहर को, and then used to come back and mom used to make Rasna or Tang. Exactly. As soon as you come, the first drink that you have is Rasna or Tang. Exactly. मैं वही बोलने वाला था. जैसे स्कूल से थके हारे वापस आते थे तो बहुत धूप होता था. आई थिंक मोस्ट इंडिया में हर जगह गर्मी होती है मोस्टली एक्सेप्ट द हिल स्टेशंस. तो वापस आते थे तो वही रसना या फिर एक आता था याद है किसान का स्क्वाश. आइदर ऑफ द टू. तो उन दोनों में से किसी ना किसी का वो जूस बना के पीना घर पे. मैं तो उसको जमा के भी रखता था फ्रिज में थोड़ा आइस डाल के कि आइसक्रीम बन जाएगा. I actually used to put that liquid on let's say vanilla ice cream. तो it used to be like जैसे रूह अफ़ज़ा डालते हैं ना vanilla ice cream में, तो उसका वैसा वो squash का बन जाता है. So I have like really nice memories of that time. एक्चुअली मेरा कोई घर का मेमोरीज है नहीं। मतलब मेरा स्कूल ही बोर्डिंग स्कूल था, तो मतलब मैं नवोदय सुना है क्या? जवाहर नवोदय विद्यालय। yes but फिर भी explain कर दो एक बार to the people who don't know For the audience. what is नवोदय. तो एक्चुअली तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नवोदय विद्यालय समिति करता है, जिसको राजीव गांधी ने मतलब शुरू किया था 1986 में। तो ये ऑल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे मतलब 6 से लेकर 12 तक का स्कूलिंग होती है और बोर्डिंग स्कूलिंग. So you were there from 6 to 12 पूरा. 6 to 12 years. आप लोगों ने बोला था कि घर में आके तो मेरा घर तक की मेमोरी है नहीं. हाँ यार Yeah, मतलब because you will have a totally different stream of a boarding school, and then both of us will have a different stream of like day school. I've always wanted to interact with someone जो boarding school गया हो ताकि उनका experience जानने को मिले. I think we have a good mix. We have somebody जो कि boarding school में रहा है and in one school. And Tanya, what about you? What were your schools? I have a completely different experience. Like obviously I was not in a boarding school, but my dad is in a transferable job, so we used to change cities every 3 years, 3 to 4 years. I've changed 7 schools from like nursery to 12th standard. So so it used to be a different experience every time, because आप हर बार एक नई जगह पे जा रहे हो, then that pressure of making new friends, because others would already have groups there to gel well with everybody and to to get on with the teachers and all. So it used to be a different experience every time, but I've had good experiences in all of my schools. तो फिर भी which ones were the schools जहाँ पे तुमने सबसे ज़्यादा time spend किया?
So during third to fifth, I was in Lucknow. There's a school called City Montessori School. It's pretty popular there. Yeah, I was in that school, and I had an amazing experience. Like that was the best school that I've ever been to. Like out of all these schools, that was the best one ever. And then that was like after Lucknow. From 6th to 10th, I was in Mathura. So there was a school called there is a school called Sacred Heart Convent. That all of my schools were in ICSE board only till 10th. So both of these are ICSE board, and I used to go to Sacred Heart Convent, and that was also a different experience. Because 6 to 10 you have those boards and all, right? So that's why that is also one of the significant times that I have spent. And then in 11th and 12th, I was in Jaipur in a school called Seedling Public. So that then that was a CBSE school. तो वहाँ का भी एक अलग experience हो गया according to the place. yeah. So I also have a similar experience. मेरे पापा भी he is in a transferable job, so that's why I also had to move to a lot of places. I think majorly I've studied in around five schools, I guess. Yeah. So yeah, बचपन में when I was in Bhubaneswar during the class ones, I think LKG, UKG, I was in DAV. But and beach में like very briefly, I was in a boys' school. Very briefly, when I was in Delhi for a brief time, and then I moved to Chandigarh. वहाँ पे जाके DAV में ही था मैं, and till class 8th or 9th से then when I moved to Lucknow, I shifted into DPS, Delhi Public School in Lucknow. So yeah, और सारे schools मेरे CBSE के ही थे. नवोदय का कौन सा बोर्ड है? नवोदय का CBSE बोर्ड है, CBSE. सारे नंबर CBSE. So yeah, so what were your schools like? So like if I say जब मैं DAV में था, तो it's a like दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल वैसा टाइप का, तो बहुत ही मॉरल वैल्यूज वाला स्कूल, उस टाइप का स्कूल था. So studies wise it was very good and the main focus was studies, but extracurriculars and all it was lacking a bit. मतलब उतना वो कल्चर नहीं था एक्सपोजर या होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर. So that's why when I'm quite happy that I moved to DPS. तो वहाँ पे स्टडीज तो था, मतलब it was on the person, like बच्चा कैसा है, like अगर उसको सिर्फ पढ़ाई करनी है then he can do that, but उसको अगर all round development भी करना है उसके लिए भी scope है. So it was quite dependent on the child. So that's why I mean that was a characteristic of the school, that it was quite modern in that sense. नवोदय का थोड़ा सा आर्मी स्कूल जैसा भी है, प्लस वो कंप्लीट डेवलपमेंट की फोकस करते हैं. तो जैसे ऐसा होता है कि वहाँ का मैं टाइम टेबल बताता हूँ आपको. तो हमको डेली 6 से लेकर 12 तक का डेली मेरे को 5:30 को उठना ही है आपको. बाप रे बाप, क्योंकि आप मैं तो भाग के आ जाता भाई ना हो पाता फिर सुबह उठने वाला. बहुत भागते हैं, पता है. मतलब मेरा एक दोस्त था, वो कि मतलब मेरे बैच में लगभग 3 से 4 मतलब 3 लोग भागे, मतलब भाग के जिसको वापस 1-2 वापस आ गए, फिर 1-2 साल तक छोड़ के भी चले गए. मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मतलब काफी स्ट्रिक्ट शेड्यूल. ठीक है, उसमें 5:30 को उठना है, 5:30 को उठ आपको 6:30 तक का पीटी क्लास जाना है. ठीक है, 6:30 को आके अपने को कुछ 45 मिनट का टाइम देता था, जिस बीच आपको रेडी होके 7:15 को असेंबली होगा आधे घंटे का. और 7:49 को 45 को आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट पीरियड. फिर 2 पीरियड बाद ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद लंच होगा 1:30 बजे. ठीक है, उसके बाद आपका 45 मिनट का रेस्ट होगा. फिर रिमीडियल क्लासेस होंगे 1 घंटे के लिए, उसमें सबको आपको वापस स्कूल आना है. उसके बाद गेम्स पीरियड होगा 5 बजे से लेकर 6 बजे तक. कंपलसरी आपको खेलना ही है, आप जा नहीं सकते, क्योंकि मतलब अटेंडेंस होता है हर टाइम पे. ठीक है, उसके बाद आप आओगे, जो भी रेडी होगे, फिर आपको स्नैक्स मिलेगा. आपको 6 से 8 बजे तक का इवनिंग क्लास होगा, जिसमें आपका मतलब होमवर्क वगैरह जो भी करना है वो करोगे. तो इस सारे बीच होमवर्क भी क्लास में ही होता है, मतलब लाइक होमवर्क करने के लिए भी क्लास होता है. लाइक एक स्लॉट हो गया कि स्लॉट में तुम होमवर्क करोगे, तो वो होमवर्क नहीं हुआ ना, फिर वो होम तो है क्लास वर्क ही है वो भी. हाँ, उसका 8 बजे से लेकर
45 मिनट का डिनर होगा, उसके बाद हॉस्टल जाके अटेंडेंस होगा, फिर 10:30 को लाइट ऑफ होनी है। बाप रे। तो ये शेड्यूल था। आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो 12 तक। Oh. खतरनाक भाई। तो ये बहुत था। और इस बीच हाँ मतलब ये तो था। और इस बीच हमारा संडे को भी क्लास लगता था 10 to 12 होमवर्क करने के लिए। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे होता था अपना इवनिंग मतलब सीसी सीसी 6 to 8 जो अपना होमवर्क क्लास होता था, तो उस टाइम अपना होता था वहाँ पर को करिकुलम एक्टिविटीज होती थी। तो उसमें कभी डांस कंपटीशन, कभी सिंगिंग कंपटीशन, ये सब होता था। तो मतलब काफी सही था, बट जो टाइम टेबल कुछ ज्यादा ही गंदा था। I think when you go to a convent, right, it is very different Yeah, than the other yeah. schools because convent में it's like कि आप सारे time पे Christian prayers कर रहे हो. I actually really like that उधर का environment because एक तो your principal is a sister, you'll call her sister. ठीक है, then there are all these sisters who are in the administration, who are also handling the other things, like who are also teaching there, and then I mean, you have all sorts of Christian prayers in the morning assembly, and usi values pe hi, you know, all of those the events also used to go on. Like let's say कि जो annual function होता है, that was also around some sort of Christmas theme only, some sort of all of these themes. And especially during the Christmas time, I think that was like I used to love those events there. हर रोज देयर यूज्ड टू बी अ क्रिसमस कैरल, सो लोग सब लोग क्रिसमस कैरल गा रहे हैं असेंबली में खड़े होके, एंड देन you have all of these plays which are enacted around those Christmas themes. So I had a good experience. Like that was something very different as compared to all of my other schools because none of the other schools was a convent, and this was. And I feel like I did feel like in a convent they help you develop those moral values much more as compared to these other regular schools. So, So which that one was is this? You're talking about CMS or which one? the convent was in Mathura, Sacred Heart Convent. Oh, Sacred Heart. Oh, there was a Sacred Heart in Lucknow also and Chandigarh also. But that used Yeah, to be, it's yeah, not a franchisee or something, but it's a pretty common name yes, across. yes. हाँ, because हमारे वहाँ पे जो होता था, that used to be a girls only school. Okay. वो I remember लखनऊ में एक बहुत ही famous school है, La Martiniere. Yeah, I know. Yeah. It's a boys school. और एक और है Saint Francis, I think. That is also boys school. और बीच में है girls school, which is Sacred Heart. तो लाइक उनके बीच में फाइट्स होते थे, मतलब आई हैव हर्ड स्टोरीज, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे पढ़ते थे तो बताते थे दोनों बॉयज स्कूल के बीच में दोनों बॉयज स्कूल के बीच में हाँ, फाइट होते थे गर्ल्स उसके लिए वहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, प्योरली मूवी स्टाइल. हाँ, but that's an interesting point. All of you guys are from co-ed schools, right? But do you guys yes. ever have, मतलब मैं था बॉय स्कूल में, बट इट वाज वेरी लाइक बहुत ही कम टाइम के लिए एंड ड्यूरिंग अ वेरी यंग एज. सो मेरे मतलब आई आल्सो डोंट नो द डिफरेंस, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स कि I mean, I feel कि co-ed school has a lot of advantages as compared to a single gender school because काफी जल्दी exposure होगा, you know how to talk to the other gender. Otherwise, I feel थोड़ा awkwardness आता है. No, actually, I don't. I slightly disagree on that. So, I have not been I've always been in a co-ed school, but my college of 4 years was a girls' college. No, so So, that's different, no, yeah. because you So are what I'm already saying is matured by then. no, what I'm trying to say is that the kind of exposure, the awkwardness that you're talking about, right? It depends how the school is. अगर स्कूल ऐसे एक्टिविटीज में एनरोल कर रहा है where you are going around, you're participating in inter-school fest, inter-school competitions and all, when you are having that kind of a development, so it depends on the school rather than just the fact that it is not a co-ed school. हाँ, It depends on the kind of offering that the school gives. agreed, वो सही है, but still मतलब let's say a co-ed school is giving that offering and a non-co-ed school is giving that offering.
then the co-ed school would obviously have more advantages than the non-co-ed school, because you can't go for that inter-school event or हमेशा नहीं जा सकते ना. So at least मतलब some chosen people who are good at some competition they would go, but there would be a bunch of people who are, let's say वो उस चीज में अच्छे नहीं है and they are not chosen to take participation in that competition, then they would be left out, right? तो वो तो है उसमें. मेरा स्कूल कोविड था, बट हाँ, ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं कि कोविड होते हुए भी हाँ. मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसा कोई अगर बात करते मिल गया तो एक मैच ना बन गया अपने स्कूल में, बहुत तो ऐसा देखते रहिए कि कौन किससे बात कर रहा है. ऐसा Yeah. की बात करोगे तो फिर क्या बात कर रहे हो, फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा, आपने बोलेंगे आपकी बेटी ना बहुत बात करती है, ऐसा ऐसा. यार ये बहुत ही गलत है. बट हाँ मतलब ये जैसे बहुत ज्यादा. Yes, मेरे actually मेरे को जैसे लगता है ये वाला चीज ना छोटी cities में ज्यादा होता है as compared to like I don't know, because I have also like faced that thing when I was in Mathura, which is a small city, but I did not like in Jaipur. It was a completely different scenario because it was more cool and forward there. मतलब सिटी का मतलब इट्स जस्ट वियर्ड बिकॉज मैं जब डीएवी में था तो ऐसा था कि सेम स्कूल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोविड फैक्टर, बट दो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन. तो जो दूसरा वाला सेक्शन था वहां पे गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में काफी देयर वाज क्वाइट अ गुड फ्रेंडशिप बिटवीन देम एंड इट नॉर्मल था, लाइक बातचीत करते थे नॉट. बट हमारे सेक्शन में आई डोंट नो व्हाई इट वाज वियर्ड, बट लाइक लड़का लड़की से बात कर ले तो ऐसे मतलब बच्चे ही हो भाई तुझे पता है उससे बात कर हो, ये हो क्या होता है भाई, हो मुझे समझ ही नहीं आता था. बट ऑल उस टाइम मुझे भी ऐसा फील होता था, अरे यार किसी ने देख तो नहीं लिया मैं इससे बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा फील होता था. I mean, even more something even more weird than this was in my school, like in the Mathura school. I think probably in 6th and 7th that punishment क्या होती थी? Punishment होती है कि लड़का लड़की साथ में. यस 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 एग्जैक्टली. ये क्या मतलब हुआ यार? वही कि उन दिनों क्या होता था कि अच्छा ये बच्चे बात कर रहा है, इसको बीच वाले रो में लड़की के साथ बिठा दो. एंड वो जो ग्रेजुअल शिफ्ट होता है ना, व्हेन द टीचर्स आल्सो रियलाइज कि अरे नहीं अब ये पनिशमेंट की जगह गिफ्ट हो गया है कि लड़के को लड़की के साथ, एंड दे आर क्वाइट एंजॉयिंग दैट, दे आर उनको मजा आ रहा है वो करने में. तो वो जो एक फेज होता है ट्रांजिशन का जहाँ पे टीचर्स को भी लगता है कि अरे नहीं नहीं इनको अलग बिठाओ अलग बिठाओ. तो सोचो ना प्लीज ऐसा कि जो बंदी चुपचाप पढ़ रही होगी उसको बाजू में बैठा दिए तो बोलेगी तुम उसको पनिशमेंट दे रहे साथ में मेरे को क्यों दे रहे हो? वही सेम. नहीं मतलब ऐसा भी होता था ना कि कोई शैतान बच्चा है, शरारती बच्चा है, नॉट शैतान, शैतान गलत वर्ड है, शरारती बच्चा है. तो जैसे मैं हमेशा से टॉपर बच्चा था तो उसको पनिशमेंट देने के लिए कभी कभी होता था मेरे साथ बिठा देते थे. तो मतलब वही एक्सपेक्टेशन क्या है, ये उसको सुधार थोड़ी देगा, उल्टा और बिगड़ेगा ही, मतलब चांसेस है कि डिस्टर्ब होगा कि क्योंकि वो कुछ कुछ कर रहा है. सो हाँ उससे याद है लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वर यू इन स्कूल, मतलब कि यार ये बंदा ये स्पोर्ट्स खेलता है या ये क्विजर है या ये मतलब डिबेटिंग लाइक गर्ल्स मोस्टली मैंने देखा है कि दे आर क्वाइट स्मार्ट और लाइक डिबेट्स आर्ट्स में काफी अच्छा, दे आर क्वाइट फॉरवर्ड राइट इस टाइप के चीजों में. So, like, what type of students were you guys? Like, I'll start with myself. So, I've always been a studious person only, and ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ता था, but marks हमेशा अच्छा था. Like, I've always topped in all of my classes. But और जब मैं बच्चा था थोड़ा तब मैं मतलब मेरी हाइट थोड़ी जल्दी बढ़ गई थी, ठीक है. मतलब बच्चा दिन आई एम टॉकिंग अबाउट 5th 6th, लाइक मेरी हाइट 8 से इतनी है, बढ़ी नहीं है, तो पहले ही बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी. तो उस टाइम पे होता हाँ तो उस टाइम होता है ना कि जो क्लास में लंबा होता है बाकी सब टिंगू टिंगू होते हैं, तो थोड़ा लड़ाई वड़ाई होती है छोटे बच्चों के. तो वो मैं करता था और ऐसा नहीं कि शरारत करने के लिए करता था, क्योंकि आई डोंट नो कौन से मूवी का इन्फ्लुएंस था क्या था, बट ऐसा होता था कि मेरी गैंग होगी एक,
मतलब हूँ मैं टॉपर ही, बट ये साइड भी है कि गैंग होगी, कोई पंगे नहीं लेगा हमसे, पेल देंगे your तुम्हें। your description of how you were in school was कि मैं टॉपर तो था बट मैं गैंगस्टर भी था. हाँ मतलब मतलब टॉपर गैंगस्टर. टॉपर गैंगस्टर की अच्छा बच्चा, टीचर की नजर में अच्छा, और मतलब देयर वाज अ वे फॉर मी टू जस्टिफाई इट टू माई सेल्फ ऑल्सो, कि मैं जिनको मारता था पहले नहीं मारता था सच में, वो लोग शरारती बच्चों को ही मारता था जिनको टीचर्स भी हेट करते थे. हेट नहीं मतलब कि जैसे ऐसा हुआ कि कुछ हो गया कि ये दोनों लड़के शैतानी कर रहे थे, रॉबिन हुड. तो मुझे पता है कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज मैं टीचर्स के गुड बुक्स में हूँ, तो उसका मैं थोड़ा फायदा उठाता था. तो वैसा टाइप का था मैं. बट जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया 8th 9th में, तब स्कूल भी चेंज हो गया, तो वो सब छूट गया. तो वही आई वाज गुड इन स्टडीज, देन मैं फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, तो आई वाज गुड इन फुटबॉल, स्पोर्ट्स में रहता था. बाकी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल, जस्ट अ नॉर्मल किड. मैं 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 भी स्टूडियस था, और जिस नवोदय है तो खेलना कंपलसरी है, तो मैं फुटबॉल खेलता था. और और मैं अपने स्कूल के बैंड ग्रुप में भी था, तो मेरे को ट्रम्पेट वगैरह बजाना आता ट्रम्पेट, है. मुझे लगा तबला. ट्रम्पेट, तबला, सॉन्ग और थोड़ा बहुत आर्ट आर्ट वगैरह की चीज़ें भी कर लेता था. और मैं बैक डांसर, मैं कभी फर्स्ट रैंक पर कभी नहीं बैठा, सेकंड लास्ट और लास्ट. हाँ ये तो है. So, like at least third to fifth standard when I was in Lucknow, and even in when I was in Mathura, 6 to 10 standard. So I used to participate in all sorts of activities, except for sports. I used to be in all sorts of dance events. जहाँ पे भी डांस करना है, whether it's a competition or with an annual function, I used to be in those. And कहीं पे से host करना है, assembly करनी है या कुछ उस तरीके की public speakings and all, I was also part of that. And I was also part of the school band for I think 3 years, and I used to first I used to play a thing called markash, ऐसे ऐसे करके उसको घुमाना होता है. अरे And वो है then क्या, उसके बाद वो घुमाना कौन सा, मरकश नहीं वो नहीं, नहीं होता है? मरकश ऐसा गोल सा होता है. मरकश होता है, उसमें एक्चुअली कुछ बीट लगी होती है एंड आप उसको Roughly ऐसे just घुमाते हो तो रहता है. नहीं नहीं, Not एक्चुअली नारियल, जो कोकोनट होता है ना, नारियल, उसका वो सेंटर वाला होता है, उसके अराउंड कुछ तो लगे रहता है, उसको वो करने से हाँ, तो फ्रिक्शन उससे से वो आवाज आता है. आवाज आती है. okay. एंड उसके बाद आई गॉट अपग्रेडेड टू प्ले द साइड ड्रम, जो यहाँ पे ऐसे लगाते थे हाँ and ऐसे साइड ड्रम से मार्च पास्ट में भी जो बजाते हाँ. थे. तो मार्च पास्ट में तो वही होता था ना, मार्च पास्ट पे पहले सारे लोग आगे मार्च कर रहे हो, पीछे बैंड आ रहा है और एंड में वो बड़ा वाला ड्रम होता था, बेस ड्रम. बेस ड्रामा. so so वो भी मैंने करा है. And yeah, I mean studies wise I was definitely, I did not come first in the class, but I was also like I was in a good place, like not the first one definitely, but I was doing well in studies as well. या और मेरा ये भी था कि लाइक ये जो भी स्टडीज रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स है, राइट, जैसे कि क्विजिंग हो गया, चेस हो गया. क्विजिंग में मुझे था इंटरेस्ट, तो स्कूल में लाइक आई वन अ लॉट ऑफ क्विज या स्पेल बी, ये सब में मैं जाता था. बट जैसे चेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट ऐसा था कि मेरे स्कूल में कोई टीम भी नहीं है चेस का, तो उनको क्या लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो इसको भेज दो चेस खेलने. और वहां पे मैं जाके ब्रूट फोर्स लगा रहा हूँ वहां पे जाके, हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, और काफी देर तक आगे चले भी जाते हैं. बट ऑब्वियसली कोई प्रो बंदा आएगा तो उससे हार जाएंगे. बट वही नॉर्मल बंदे को, एवरेज बंदे को हरा के ब्रूट फोर्स लगा के कैलकुलेट कर करके आगे चल, ये सब बहुत होता था. हाँ, और ये हमेशा से डिबेट रहा है. यू गाइस वुड हैव नोटिस्ड लाइक सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी एंड स्टेट बोर्ड. तो लाइक मैं और प्रमोद, तुम्हारा स्टार्टिंग से सीबीएसई है क्या प्रमोद? मेरा, हाँ, सीबीएसई. मेरा भी स्टार्टिंग से सीबीएसई, बट तानिया हैज स्टडीड इन आईसीएसई. तो व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? आई थिंक यू आर द बेस्ट वन टू आंसर दिस. See, I don't know. I was never able to understand the difference. Like it was just कि सबने एक mind में instill कर दिया कि भाई like there was this general consensus that ICSE का English is good and CBSE का Maths is good. So if you want to take ICSE, so you should opt for ICSE till let's say 10th standard,
and then उसके बाद you should move on to CBSE because in 11th 12th so that you know all the exams and all they're generally based on the CBSE content. तो मतलब as such कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाँ सीबीएसई का कॉम्पिटिटिव आता है. एग्जाम्स के लिए. सो दैट वर लाइक इन 11th and 12th आई मूव टू सीबीएसई. तो अब मैं ऐसे डिफरेंस नहीं बता सकती हूँ क्योंकि दोनों केसेस में पढ़ाई तो उतनी करनी पड़ती थी राइट. एंड दोनों केसेस में वही एज अ किड लाइक यू लाइक ये होमवर्क करना है एंड ओ आई हैव टू डू दिस एंड दैट. सो दैट यूज्ड टू बी द सेम इन बोथ बोर्ड्स. आई एम जस्ट नॉट एबल टू गैदर द डिफरेंस इन दिस केस. I have seen थर्ड या फोर्थ क्लास का हिस्ट्री बुक आईसीएससी का. तो मतलब सीरियसली आई थिंक उसका सिलेबस ना वो अपना 6-7 का सिलेबस था ना उस लेवल पे था. तो सीबीएसई मतलब से. शायद तक यस यस सीबीएसई का 6-7 का था. आईसीएससी का मतलब फोर्थ या फिफ्थ क्लास का था होगा मतलब यस या यस फिर जो भी. सही बात मैंने है. ऐसा बिकॉज कंपेयर नहीं करा है कि यू नो हाँ. दूसरे बोर्ड्स में क्या था. सो दैट्स आई डोंट नो द डिफरेंस. या बट ये जो पॉइंट तानिया ने भी बोला वो भी सही है. बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि आईसीएसई को लाइक शेक्सपियर एंड ऑल वो सब पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में एंड काफी अच्छा लिटरेचर पढ़ाते थे उनको. सीबीएसई में वही नॉर्मल एनसीईआरटी में जो होता है वो सब पढ़ाते थे. बट ये भी मैंने नोटिस करा है कि आईसीएसई में मार्क्स ज्यादा आते हैं बच्चों के बिकॉज उनका एग्जामिनेशन स्कीम कंपेयर मतलब वही कि आईसीएसई में लाइक ज्यादा लोगों के 100 आ रहे होंगे, 100 आ रहे होंगे. सीबीएसई में थोड़े कम लोगों के आ रहे हैं. उस टाइप का मैं बोल रहा हूँ मतलब सबके ही ज्यादा आ रहे होते हैं. और वो मैथ्स वाला भी सही है कि मैंने देखा है सीबीएसई वाले मैथ्स में सही होते हैं ज्यादा. एंड बट स्टेट बोर्ड का मैंने सुना है बहुत टफ होता है. लाइक आसपास सुना है मैंने कि बहुत टफ होता है उनका मैथ्स. और बाकी सब्जेक्ट्स लाइक मगने वाला होता है उनका कि मतलब उनका जैसे चेकिंग होता है. तो दिस व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल कि लाइक रट के जाओ एंड उगल दो. सो दे डोंट लुक फॉर दी मतलब करेक्टनेस एंड ऑल. बस रटा हुआ होना चाहिए. किसी ने अगर बहुत ही इन्वेंट करके कुछ लिख दिया, इनोवेट करके कुछ आंसर लिख दिया तो दे वुड नॉट लाइक इट. ऐसा टाइप का था. स्टफ मार्किंग. हाँ तो बहुत ही फिक्स्ड रखने वाला था. बाकी मैथ्स एंड ऑल वो स्टफ तो इसलिए वहाँ पे लाइक 85-90 ले आए तुम तो बहुत ही बड़ी बात होती है वहाँ पे. हाँ मतलब जैसे ये इसमें भी जो जेई मेंस वगैरह का होता है उसमें भी जैसे स्टेट बोर्ड्स के जो 90 परसेंटाइल वगैरह जो परसेंटाइल आते हैं उसका भी हाँ वैल्यू उनका बहुत कम होता होता है. हाँ उनका कम होता है. और बाकी हम एग्जाम्स की बात कर ही रहे तो डू यू गाइस हैव एनी एग्जाम स्टोरीज लाइक चीटिंग वीटिंग करा हो, किसी को कराया हो या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम्स? तो साथ ही ये 11 की बात है और केमिस्ट्री एग्जाम था. केमिस्ट्री या समथिंग पीसीएम उसमें से कुछ था तो केमिस्ट्री था. तो अब जानते हैं 11 में आते ही 10th के बोर्ड दे के आ रहे हैं सब चिल हो जाते हैं. कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है. तो अपना जो एक जो फ्रेंड सर्कल था वो वो सारे के सारे एक ही क्लास में उनका रोल नंबर होता था. 22 होता था और 2 रो कंटिन्यू वो सारे के सारे मतलब बैठते थे. तो ऐसा था कि मैं सेकंड क्लास बेंच में था और अपनी जो उस टाइम जो टीचर की जो सेट कर दी थी वो थोड़ा मतलब जैसे रहता ना कि आप एक साइड देख रहे हो बट आप हाँ तो वैसे डाल मतलब आप इधर देख लेकिन आपको दिख हर तरफ रहा है ऐसा. हाँ मतलब रितेश थोड़ा उनका रितेश देशमुख क्या बोलते हैं, भेंगा बोलते हैं उसको. हाँ जो भी मतलब हाँ. समझ गया हाँ ना. हाँ तो वैसे रहता रितेश देशमुख का भी मैंने वैसे है. वो ऐसे देखता है लेकिन उसको इधर दिखता है. तो मैंने मतलब धीरे से मेरे पीछे बैठी थी तो उसने मेरा पेपर मांगा तो मैं धीरे से पेपर नीचे से पास कर दिया और मैं सप्लीमेंट्री मांग के मैं लिख रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद में वो पेपर मेरा पास है कि पता नहीं वो कहीं और पहुंच चुका है. और इस पर लास्ट कुछ 5 या 10 मिनट थे तो वो लिखी कि जल्दी जल्दी 10 मिनट बचे जल्दी जल्दी मतलब जो भी करना है कर लो. और उसका ना चैलेंज है कि पहुंच तो गया सब तो लिख लिए अब पेपर मेरे को वापस कैसे मिलेगा. तो अब सब ये देख रहे हैं कि अब मैडम इधर देखेगी अब हम पेपर पास करेंगे. तब यहाँ पर क्या हो कि मैडम देख इधर रही थी लग उधर रहा था पेपर दे दी मेरे को और पकड़ लिया मैडम. और उसके बाद क्या डायरेक्ट पकड़ी सारे का सारा पेपर. ओह तुम्हारा कि दूसरों का? तुम्हारा. मेरा फिर क्या हुआ?
फिर से The लिखो। one who helped. मतलब पास ही हो गए, मतलब पास ही हो गए, सप्लीमेंट्री था आपके पास तो पासिंग मार्क तो आ गए। तो मतलब जब पास हुआ था मतलब पेपर वो क्रॉस हो गया पूरा, बाकी उससे आ गए। अच्छा तो उसके बाद फिर दोबारा कभी चीटिंग करा है या इस इंसिडेंट के बाद हो गया कि बस अब नहीं करना है? नहीं नहीं, वो तो चीटिंग तो वो तो एग्जाम हॉल से बाहर निकल के भूल गए क्या हुआ था, कल फिर करेंगे तो और मैं उसका भाईचारा रहता ना कि इनका नैया पार कराना। ना चीटिंग वाइज मैं हमेशा से बहुत ही डरपोक बच्चा था, मतलब इस मामले में। तो मतलब मेरे को कभी, मैं चीटिंग नहीं करता था, मेरे को आता था आंसर, बट मैं चाहता था हेल्प करना जब भी लोग पूछते थे, बट मेरी बहुत फटती थी। अब जो जैसे तुमने बोला ना कि मेरी ये सबसे बहुत फटती थी, तो आई थिंक मैंने आज तक एक लड़की को बस एक बार चीटिंग कराया, क्योंकि वो बहुत पूछ रही थी और लाइक मतलब मुझे लगा चलो बता देते हैं। तो वो आता था ना, याद है मैप आता था, मैप पे मार्क करो कुछ कुछ। तो मेरे को याद है मैंने एक बार मैप पास करा है अपना, बिकॉज आई वॉज वेरी कंसर्न कि अरे भाई मेरा पेपर कुछ हो जाएगा वैसे, मतलब चाहता था मैं, बट वही आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि भाई पकड़ा जाऊंगा एंड ऑल। तो इसलिए मतलब स्कूल में आई नेवर नीडेड टू चीट, लेकिन कॉलेज में जाके जरूरत पड़ी चीटिंग की, क्योंकि भाई आता ही नहीं है, बहुत टफ हो रहा है। तो कॉलेज में जाके पहली पहली बार मैं चीटिंग कर रहा हूँ, एंड आई थिंक मैंने 2 बार ट्राई किया और मैं दोनों बार पकड़ा गया। उसके बाद मैंने सोचा तू रहते देते यार, बिकॉज इट वाज सो एम्बैरेसिंग। तो आई थिंक ये सब स्किल्स स्कूल में ही सीख लेने चाहिए। मैंने पहले भी मतलब ऐसे चीटिंग ऐसा करी है, बट मैंने कभी ऐसा नहीं करा कि पेपर या मैप या फॉर दैट मैटर कुछ भी पास कराओ। एंड ऑल्सो लाइक मतलब ऐसा होता था ना, जैसे देयर वुड बी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऐसे, तो ऐसे कोई पहले का दूसरा ऐसा वो होता था, राइट? तो उतना तो आई हैव डन, लाइक यस। एंड लेट्स से किसी को ऐसे थोड़ा सा दिखाना हो कि भाई ये थोड़ा सा देख ले, उस तरीके का आई हैव डन, बट आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक पेपर पास करना या फिर कोई फर्रा लाना। That I have never done. I was too scared to do that. हाँ मतलब वो मैंने भी स्कूल में कभी नहीं देखा। चिट-विट बहुत ही थोड़ा एडवांस मैकेनिज्म है, कॉलेज के बच्चों को देखा मैंने करते हुए। मेरे पास एक और चीटिंग स्टोरी है विच इज नॉट फ्रॉम स्कूल कॉलेज से, बट बहुत फनी है कि मेरे को याद है हमारा आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हो रहा था, ठीक है, तो कॉलेज में। एंड वैसे 6-7 लोग लाइन में बैठे हैं, लाइक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सबसे राइट वाली लड़की को आता है, और उसके बाद 4-9 लौंडे बैठे हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है। तो वो याद है होता था डैंगलिंग पॉइंटर्स, होता था डैंगलिंग पॉइंटर्स। तो उसने लिखा है डैंगलिंग पॉइंटर्स, और वो मेरे तक आते आते बैंगिंग पॉइंटर्स हो गया है, और मुझे पता नहीं है, और मैंने लिख दिया है बैंगिंग पॉइंटर्स। और फिर मेरे को टीचर ने बात बोली, व्हाट इज बैंगिंग पॉइंटर्स, साउथ इंडियन, व्हाट इज अ बैंगिंग ए पॉइंटर है। बोला नहीं पता व्हाट आर बैंगिंग पॉइंट। बहुत फनी था वो। थोड़ा होता ना एग्जाम में, हे भगवान अच्छा जाए एग्जाम। तो मतलब मैं एटलीस्ट 6th तक तो बनाता था, उसके बाद थोड़ा कूल बन गया मैं, बट वो ओम स्वस्तिक पेपर में ओम लिखना, और मेरे दूसरे बच्चे भी करते थे, क्लास के दूसरे बच्चे भी करते थे ये सब। तुम लोगों ने किया है कभी ये? मैं I have never done. तक मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे को पता नहीं, मैं अलग ही जोन में चले गया, तो मैं वहां पर क्रॉस बनाते थे कि हाँ एग्जाम अच्छा जाए, भगवान की कृपा बनी रहे, तो वही ओम स्वास्थ्य, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं तो ऐसा तो नहीं करती थी, but I have seen definitely people around me they used to do that. Yes. Yes. और तुम लोग का यूनिफॉर्म क्या होता था स्कूल में? अपना 7th क्लास तक एक था, 7th क्लास से चेंज हो गया, उसके बाद आया था एक चेक कलर का ब्लू चेक्स का शर्ट होता था, और पैंट थोड़ा कैसे बोलेंगे, नेवी ब्लू का। पैंट नेवी ब्लू, एंड विंटर्स में? हाँ, विंटर्स में उसी के ऊपर अपना ब्लेजर आता था, या फिर स्वेटर रेड कलर का, रेड मतलब रेड का थोड़ा सा मतलब डीपीएस में तो आई थिंक बेकार यूनिफॉर्म होता है, बट सही लगता था। इट्स ऑल वाइट, मतलब बेकार इन द सेंस घर पे बहुत डांट पड़ती थी मुझे कि बिकॉज इट वाज ऑल वाइट ना, तो
गंदा हो जाता था ऑल वाइट। तो इसलिए आई यूज टू लव विंटर्स। मतलब एक तो ब्लेजर पहनने मिलता है तो मस्त Yeah. लगता है। एक तो ब्लेजर पहन Blazers. हाँ, Hmm. ब्लेजर पहनने मिलता है तो मस्त लगता है। प्लस ग्रे पैंट्स होते हैं, राइट? तो जो विंटर वाले ग्रे पैंट, गर्म वाले पैंट्स होते हैं, तो वो वाइट वाले तो गंदे होते थे, बट उसमें गंदा होता था तो दिखता नहीं था। तो थोड़ा सही लगता था कि हाँ, गंदा उतना नहीं लग रहा है, यू कैन रीयूज इट। ऐसा नहीं कि हमेशा ही धोना, हर दिन ही धोना पड़ रहा है उसको। तो वो अच्छा होता था। बाकी टीपीएस में राइट नाउ, उस टाइम तो मस्त लगता था, बट राइट नाउ आई थिंक इट वाज अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट हाँ, उसमें डिमार्केट करते थे कि अगर तुम स्कॉलर हो, 90% से ऊपर है फॉर लगातार 3 इयर्स, तो यू गेट अ ब्लू ब्लेजर। तो उस टाइम पे अच्छा लगता था पहनने के लिए, तो थोड़ा अच्छा लगता था, कूल लगता था। बट अभी आई फील कि हाँ, ये गलत बात है, बिकॉज Hmm. उस टाइम तो इतना पता नहीं होता है। बट इस अब लगता है कि आप डायरेक्टली स्टूडेंट को ऐसा बोल रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है। कोई और अगर किसी और चीज में अच्छा, उसको तो आप वो नहीं दे रहे हो ना, कुछ और मेडल या सम Yeah. टाइप ऑफ यूनिफॉर्म, बट सिर्फ पढ़ाई वाले को दे रहे हो। तो या तानिया, व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा क्या है? Uh, so I think in the convent school, and in fact in Lucknow as well, there was this gray uniform, like gray frock, हम्म, and then नीचे like normal button shirt, just like जैसे boys का था वैसे girls का भी button shirt, and then अच्छा, उसके ऊपर you फ्रॉक। have a gray frock, then you have this different belt, a tie, ठीक है, यस, यस। and so that was and then the regular socks and shoes. And I think तुम लोग के स्कूल में भी होता होगा, right? दिन एक दिन का एक अलग वो यूनिफॉर्म होता है, हाउस where you have this हाउस डे, white house day. हाउस So you'll यूनिफॉर्म। have that colored shirt, colored tee, and then white skirt. Like for girls, it was white skirt, and boys के लिए pants, and then PT shoes. यस, So यस, यस। वो होता तो था. But in my Jaipur school, I think that uniform was pretty cool. We used to have a very nice, like a blue, white, and red color ka plaid skirt, and then a white shirt. And then we used to have the girls used to have this sort of like French tie kind of a thing. So it used to be very nice, and boys ka would was something different. And then winters may the uniform used to change. Winters may it used to be like you were saying, right? Grays winters के लिए, but हमारे में it was maroon. So winters का बिल्कुल ही different uniform होता था. That was maroon skirt for girls, and then pants for boys, and blazers used to also be maroon. So that was also like nice. I या think that was pretty nice. या एक और one thing related to these uniforms only. जो है मथुरा स्कूल था वहाँ पे, because it was a convent, right? So they used to like these sisters and all, they used to think कि भाई, they used to focus on a lot on कि लोग सही से कंघी वंगी करी उन्होंने. Boys have not done a middle parting, girls are like nicely like braided and all. So they used to ask the girls to like have two either braids or ponytails, and then ribbon लगाओ, रिबन लगाओ। black यस, color बहुत का. सुना है ये तो। तो वो हम करते थे. बट या जयपुर वाले स्कूल में लाइक इट वाज जस्ट लाइक दे वर लाइक नो शिट, डू व्हाटएवर यू वांट. तो हाँ, और मैंने ड्रेसेस देखा है। या बोलो। ड्रेसेस एक चीज बची. तो एक्चुअली अपना ऐसा था कि सबसे पहले मॉर्निंग में तो ऑब्वियसली आपको टी शर्ट पैंट, मतलब जो भी अपना वो पहन के जाना जो हाउस वाइज हो. उसके बाद अपना वेंसडे को वाइट ड्रेस पहनेंगे टोटल, ऊपर से नीचे वाइट, और बाकी ड्रेस हो जाए. और इवनिंग क्लास जो मैं बोला था 6 से 8 का जो क्लास होता था, उस टाइम सारे के सारे लड़का लड़की जो ड्रेस पहनते वो पहनते थे कुछ सीमेंट होता ना, सीमेंट उस कलर का होता था कुर्ता, और पजामा उससे थोड़ा डार्क कलर का. ओ भाई, और ये सब क्या होता था? यस फॉर बोथ तो गर्ल्स मतलब एंड बॉयज. यस लड़कियों को भी कुर्ता ही पहनना है। कुर्ता पजामा बॉयज पहनेंगे, लड़कियां मतलब सूट अपना सलवार सूट हाँ। पहनेंगी सेम कलर. अच्छा, अच्छा। तो हाँ। ये और बॉयज, अब उसमें एक गलत बात था कि बॉयज को सैटरडे को अलाउड था कलर यूनिफॉर्म, वो भी रात को 6 कलर ड्रेस पहनने का, रात को 6 से 8 का. बट गर्ल्स को नहीं था, तो ये थोड़ा सा गलत था. हाँ, ये गलत है। और हाँ, ये इसी पॉइंट पे मेरे को एक और बात याद आ रही है कि लाइक जैसे मेरा स्कूल था लखनऊ में, मैंने कहीं और नहीं देखा है, सिर्फ लखनऊ में ही देखा है ये। बट क्या पता कहीं और होता होगा। बट गर्ल्स को 11th 12th में, 10th के बाद
वो पहनना पड़ता था, सलवार कमीज पहनना पड़ता था, उनका सलवार यूनिफॉर्म कमीज था। यूनिफॉर्म सलवार कमीज होता था। बॉयज का सेम ही रहता था, जो कि गलत बात है Even ना। सिर्फ तुम even in लड़की, my Lucknow school, yeah, CMS में भी ऐसा ही था exactly. हाँ तो सिर्फ तुम गलत बात है कि बिकॉज तुम सिर्फ लड़कियों को ऐसे बोल रहे हो ऐसे पहनने के लिए, बट या तो लड़कों को भी फिर वो ट्रेडिशनल वो पहना, मतलब ट्रेडिशनल एज इन कुर्ता पजामा। एंड इसलिए डीपीएस जो था लखनऊ का इकलौता थोड़ा मॉडर्न स्कूल था जहाँ पे कि लड़कियों को 11th-12th में भी स्कर्ट्स अलाउड थी। तो आधा रीजन तो यही था डीपीएस फेमस है लड़कों के बीच में कि अरे डीपीएस की लड़कियां स्कर्ट्स में जाती हैं भाई, ये ऐसे मतलब होता था कि लाइक डीपीएस का बस आ रही है तो होते थे थोड़े हरामी लड़के ऐसे कहीं पे बैठे होंगे पेड़ वेड़ के नीचे ऐसे कुछ बात कर रहे होंगे, देखेंगे डीपीएस की बस आई है, तो ये सब बहुत होता था। एंड गर्ल्स का ट्यूनिक, मेरे डीएवी वाले स्कूल में ट्यूनिक भी होता था कुछ, तो ट्यूनिक होता है ना जो ऊपर से, मतलब शर्ट और फ्रॉक नहीं, ट्यूनिक होता है जो शर्ट के ऊपर एक पहनते हैं, फ्रॉक टाइप का जो पूरा होता है। मैं उसी को ही फ्रॉक बोल रही थी, द tunic अच्छा and अच्छा फ्रॉक वही है, नीचे यू आर वेयरिंग अ शर्ट एंड देन अच्छा ऊपर अच्छा, यू आर वेयरिंग दैट लाइक इट्स अ स्लीवलेस वन, हाँ यस तो यस यस। नीचे वो मैं यू आर हाँ वेयरिंग तो दैट, उसी को ही डीपीएस बोल में, रही थी। हाँ तो डीपीएस में लेकिन लड़कियों का शर्ट और स्कर्ट ही होता था, वो सब नहीं होता था, ट्यूनिक नहीं होता था। भाई दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मेरे जयपुर वाले स्कूल में लाइक स्कर्ट वाज डिफरेंट एंड फ्रॉक वाज डिफरेंट। अब यूनिफॉर्म की बात कर ही रहे तो फैशन क्या चलता था तुम लोग, मतलब होता है ना इन एवरी स्कूल puberty hits you and you start to do some kind of fashion, girls, boys. There are different trends, right? So one of the biggest trends in our school was, which was equally followed by boys and girls, was low waist jeans. लो वेस्ट या, Not jeans, sorry, low waist pants and low waist skirts. बट या And boys के बीच में होगा लंबे बाल, because like आजकल अंडरकट चल रहा है ना, साइड से कुछ नहीं और स्पाइक्स। उस जमाने में लंबे बाल वाज द हिप, कि लंबे बाल रखने, ऐसे फ्लोई बाल, तेरे नाम का जमाना है, जॉन इब्राहिम धूप का जमाना है, तो कुछ लोग रखते थे। एंड और क्या फैट्स होते थे, आई रिमेम्बर गर्ल्स डूइंग दिस, ये गर्ल्स ये थोड़ा ऐसे ऐसे टक इन करके ताकि ये स्लीव छोटा हो जाए, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ करते थे। एंड कुछ गर्ल्स यूज्ड टू फोल्ड देयर स्कर्ट्स एज वेल, कि वो, एंड मतलब ऐसा स्कूल में कंप्लेन भी हुआ है एंड उनके पेरेंट्स को बुलाया गया था, एंड देन पेरेंट्स सेड कि नहीं हम घर पे तो देखा है, मतलब सही होता है। तो ऐसा वो करते थे कि वो वही स्कूल आके फोल्ड कर लेते थे, घर से फुल मतलब थोड़ा हाई हाई लेंथ का पहन के निकलते थे। तो उस पहले देयर वाज सम प्रिंसिपल, सम अदर प्रिंसिपल इन आवर स्कूल, शी वाज क्वाइट चिल, शी वाज अ वेरी गुड प्रिंसिपल एंड मतलब चलता था, यूनिफॉर्म वाज नॉट अ बिग कंसर्न फॉर हर। लेकिन उसके बाद एक शी लेफ्ट एंड देन सम आर्मी गाय केम, आर्मी सैनिक स्कूल से, तो भाई उसने पूरा बज कट करवाया, पैंट ऊपर पहनवाया, और हाँ टाई लूज रहती थी हमारी पहले हमेशा, टाई ऐसे खुला है, ये बटन बंद टाई ऊपर, तो बाप रे बाप, इट वाज वेरी टफ। हैंड फोल्डेड भी था क्या ऑप्शन आपको करते थे? हाँ हैंड फोल्ड करते थे, यस यस, ये सब स्टाइल होता था। व्हाट अबाउट यू तानिया, गर्ल्स और क्या स्टाइल करते? आई थिंक बाल से रिलेटेड होगा कुछ कुछ, रिलेटेड हेयर मतलब पोनीटेल ना करके, फिर वही है। हाँ एक्चुअली हाँ सी लो वेस्ट वाला तो होता था, दिस वन आई डोंट रिमेम्बर अगर मेरे स्कूल में, also in my Mathura school ऐसा नहीं होता था because it was like there was a lot of attention paid to how you are being dressed, but in my Jaipur school बहुत ही opposite story था, so obviously girls used to have short skirts like knee से slightly ऊपर, ऐसा कोई complaint वाला ऐसा scenario नहीं था unless it is looking very awkward. Then there was one very different thing which I had noticed there was कि you wear socks, right? तो उनको पूरा सॉक्स ऊपर खींच के नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे ना नीचे ऐसे पुश कर देते हैं, यू नो वो ऐसे कि ऐसे वो उसमें चूड़िया टाइप का बन जाता है, लुक्स लाइक अ लूज लुक, लूज, तो वो एक होता था। ये हुआ है काफी जगह पे देखा है, आई डोंट नो व्हाई Yeah. बट होता है। And obviously like in my Jaipur school fair, I mean because you are in that age, right? It was 11th and 12th standard, so in the girls washroom you would see all girls applying lip gloss and kajal wajal laga rahe hain, and वो सब like was pretty normal I think. हाँ ये उसके 11th अलावा 12th में हम लोग भी हाँ या
बॉयज नोटिस करते ही थे कि अरे भाई But निकालने pretty लगा है। normal to do that. I mean, yeah, dress perspective, say yes, loose tie and all, yes. A lot of boys used to wear different sport shoes, Yes, yes. but then they used to always get a beating from the teachers कि भाई नंगे पैर उनको shoes ले लेते थे और बोलते थे पूरा दिन हम नंगे पैर घूमो क्यों पहन के आए boys ये हम लोग, क्योंकि हमारा क्या होता था कि सुबह फुटबॉल सेशन होता था या दूसरे लोग तो फुटबॉल वाले तो बच जाते थे बिकॉज फुटबॉल में यू हैव टू वेयर स्टड्स, राइट? और स्टड्स पहन के तुम नॉर्मल उस पर चल ही नहीं सकते, गिर जाओगे, फिसल जाओगे, एंड देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स एज वेल। तो फिर वो लेके आते थे दूसरा जूता, स्कूल वाला, एंड पहन लेते थे। बट बास्केटबॉल या टेनिस वाले वो लोग तो नॉर्मल स्पोर्ट शूज पहन के खेलते हैं, एंड उनके लिए ये कूल होता था कि हम दूसरा शूज पहनेंगे, वी डोंट हैव टू चेंज। या फिर बोलते थे कि हम तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम में थे तो आई कांट कैरी टू शूज, और वो लोग दे यूज्ड टू गेट अ फ्री पास। बट यार जब ये दूसरा but प्रिंसिपल आया उसने फेल दिया था उन्हें। exactly. In my school, like the sports captain was like कि अब तुम्हारे जूते ले लिए. He had to roam around without shoes the entire day. It was pretty funny actually. और और क्या होता था यार, और कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ एक्चुअली अपने स्कूल में ऐसा था कि सारे के सारे जो यूनिफॉर्म मिलेंगे वो आपके स्कूल के द्वारा ही मिलेंगे, और जो टेलर जो नाप लेने आएगा वो मतलब वो आपको आपके क्लास में एक पीरियड होगा जिसमें आप नाप ले जाएंगे। तो मतलब बॉयज को एग्जाम्पल जैसे पैंट नापे तो चेस्ट का नाप लेंगे, फिर पैंट नापने लेग्स के बीच बीच में डाल के जोई की तरह सीम। हाँ नहीं वो जो पैंट का नाप ले रहे थे लेग्स के बीच से वो जो टेप डाल के पूरा हाँ। क्लास के सामने चल रहे हैं, गर्ल्स भी वहाँ पे बैठे हैं। तो हाँ। बहुत ही एम्बैरेसिंग। बहुत एम्बैरेसिंग बाद- लगता था। हाँ, और ये सब जो पैंट आ गए तो बहुत ही जानते हैं कैसे अजीब सा पैंट आएगा। फिर अपने स्कूल में एक जैसे वर्कर रहते हैं तो एक वर्कर के घर में टेलर मतलब जो वो मशीन पे टेलर तो वहां पर उसको ले जाके दे देते। तो फिर कैसा रहता था कि पैंट्स जो होंगे उसको कुछ ऑल्टर करा के लोवेस्ट में अच्छा दिखना वैसा कराएंगे, इसमें मतलब जो पेपर करा शर्ट के, को मतलब हाँ पेपर कराएंगे हाँ। और शर्ट का साइड से ऐसा वो करा के ऐसा चिपक के ना मतलब ऐसा हाँ बिल्कुल ऐसे पतला हो पतला जाए। हाथ तो पतला पतला ऐसा और पतला बहुत ही अजीब दिखता था। मतलब मैं याद नहीं करना चाह रहा हूँ। सच में यार स्कूल में और ये सब बहुत और नाटक मेरे होता को था। याद है कि मैं 9th या कोई क्लास में मैं मिडिल पार्टीशन कर रहा था यार। मैंने ये तो कभी नहीं किया, मैं खुश हूँ इस बात से। मिडिल बहुत पार्टिंग एक्चुअली काफी बॉयज को बहुत ही वो था, मतलब शौक था उनको कि शौक हमें था। मिडिल पार्टिंग करना है। एंड टीचर्स हमेशा लाइक मुझे कभी समझ नहीं आया कि उनको मिडिल पार्टिंग से प्रॉब्लम क्या है, मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ वही आया। ठीक है, बट उनको बहुत प्रॉब्लम होता था कि मिडिल पार्टिंग करके आए, ओहो ये तो ज्यादा स्टाइल वही मार है, इसको उसका हटाओ। उसका कोई सेंस ही नहीं है। मतलब हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक है मेरे को देखने में बेकार लगता था, बट दैट इज द पर्सन्स बिजनेस, राइट? किसी और को कोई मतलब नहीं हो रहा है, वो जैसा दिख रहा है दिखने दो। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म दो, बिकॉज वहां पे फॉरेन स्कूल्स में या इनफैक्ट आई थिंक इन आईबी स्कूल्स आल्सो, तो उसमें वही है ना कि मतलब अगर तुम यूनिफॉर्म नहीं बनाओगे तो कोई वर्साचे पहन के आ रहा है एंड कोई नॉर्मल कपड़े पहन के जा रहा है, कोई 10,000 का पहन रहा है, कोई 100 रुपए का पहन रहा है, तो वो क्लास डिवाइड, क्लासिस्ट थिंकिंग प्रोपोगेट होती है, राइट? तो इट्स बेटर, तो इसलिए आई थिंक इंडिया का ये कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म्स मुझे काफी अच्छा लगता है टू प्रमोट दैट सेंस ऑफ इक्वालिटी। Not that much uniforms also. हाँ थोड़ा अच्छा कूल यूनिफॉर्म बनाया जा नहीं सकता है, नहीं yes सबके लिए सेम लेकिन अच्छा दिखने वाला। yes मुझे ऐसा लगता है ये जो टीचर्स वगैरह होते हैं ना ऐसे मतलब वो लोग ना बहुत ही आई थिंक बॉलीवुड इन्फ्लुएंस्ड है। लाइक हाँ उनको कहीं पे बॉलीवुड में लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो उनको लगता है इमीडिएटली ऐसे कोई बच्चा करेगा तो हमें मना करना है, ये सही नहीं है। यस यस यस। इनडायरेक्टली वो भी बॉलीवुड इन्फ्लुएंस्ड है। लाइक मेरे को अभी भी याद है कि इनफैक्ट माय मॉम आल्सो सेज कि उस टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चंडीगढ़ वाले स्कूल में डीएवी में हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग गए थे, एंड वो जो टीचर थी किसी लड़की के पेरेंट्स को कंप्लेन कर रही थी कि आजकल ये लट बना के आती है। क्या जा रहा है भाई, मतलब एक बाल ऐसे निकल रहा है, तो मतलब इट वाज अ बिग डील फॉर द टीचर कंप्लेन
तो शी वांट्स टू से कि इसका ध्यान भटका हुआ है. अरे तुम्हें कैसे पता? जस्ट एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, बट मेरी मम्मी कह रही थी यार उस टीचर ऐसे क्यों बोल रही थी, मतलब इट वाज वेरी वियर्ड आल्सो. क्या है ये? And but it's very like surprisingly at that age you would also like you would be worried अगर कोई टीचर आपके बारे में ऐसा बोल रहा है. Now अभी हम ऐसा बोल रहे हैं right कि इसमें क्या गलत बात है और ऐसे क्या है, but उस टाइम पे it used to be a big deal कि फिर सब लोग बोलते थे अरे हाँ ये ऐसे तैयार होके आ रही है और ऐसे. हाँ, It used to be a big deal and it used to be embarrassing also for the person. अभी हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या जा रहा है, like अभी we are standing up to it, but तब ऐसा नहीं करते थे. हाँ मतलब ऐसा उस टाइम मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि उस बंदे का इंटेंशन में भी जस्ट टू लुक गुड, बट पोर्ट्रे ऐसा करा जाता है, अरे वो लड़के पटाना चाहती है या समथिंग ऐसे पोर्ट्रे करना है. इट मे बी पॉसिबल कि उसका वो इंटेंशन नहीं हो, उसको बस वो स्टाइल पसंद है, तो पता नहीं. तो ये और हाँ, हाउसेस की तो बात कर ली. कौन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ योर हाउसेस इन द स्कूल? बहुत ही, मेरा तो बहुत ही बच्चों वाला नाम है, फ्लावर्स के नाम पे रखा गया था. तो ब्लूबेल्स, ट्यूलिप्स, शैमरॉक्स एंड डैफोडिल्स. तो मैं ब्लूबेल्स में ही था, बट हाँ तो फुल नाम नहीं है. और द डीएवी में उस पे था फेमस पर्सन, फ्रीडम फाइटर एंड नेशनल हीरो काइंड ऑफ पर्सनालिटीज के ऊपर, लाइक गांधी, टैगोर, हंसराज एंड विवेकानंद आई थिंक. शिवालिक, अरावली, अच्छा, नीलगिरी, उदयगिरी. माउंटेन तो रेंजेस. मैं था शिवालिक और तान्या आपने योर्स? कभी रेड येलो ग्रीन होता है ना? रेड येलो ग्रीन ब्लू. हाँ, डीएवी में बस रेड की जगह ऑरेंज था बिकॉज भगवा नेशनलिस्ट वो था. यार मेरे को अपने स्कूल के हाउस नेम्स ना याद नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है शायद गूगल कर करने की कोशिश करी थी, याद नहीं है. Like कौन से I कलर remember, का था तुम्हारा? I remember मैं दिल्ली में भी I was for 1 year I was in Delhi in a school called Amity. तो वहाँ का I somehow remember the name. जब मैं वहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड में थी वो वाले मुझे याद है. उसमें Cool नाम होगा. रिवर्स पे नाम थे, भागीरथी, अलकनंदा, पावनी, एंड देयर वाज वन मोर रिवर. भागीरथी, अलकनंदा के साथ एक और कोई रिवर था. दैट वाज लाइक देयर वर 4 नेम्स उधर का. आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि मेरे मथुरा स्कूल में तो ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड ही था. In the Lucknow school there were names like red house was for hope, green house जिसमें I was the one, so that was love. सीएमएस का ये होता है होप लव, ये MS सब का ऐसा था. इमोशंस एंड पे होता है. का मुझे अगेन याद नहीं है. और मेरे 11th 12th में I think 11th 12th में I was so engrossed in like enjoying the whole time and all. I never used to pay attention to all of this. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है literally. Leave friends aside, students aside, teachers are the next most important part in school life. So तुमको कुछ टीचर से रिलेटेड याद है? Who are your favorite teachers or anything related to teachers? somehow मुझे ऐसा लगता है ना, इंडिया में टीचर्स दे ऑल शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. स्कूल टीचर्स बिकॉज वो बहुत ही जेनेरिक चीजें बोलते हैं स्कूल टीचर्स. आई डोंट नो व्हाई. नहीं, और पता है इससे एक और बात है कि दे ऑल शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड मतलब वो सब्जेक्ट वाइज भी लाइक मैंने जो भी स्कूल्स में जो भी इंग्लिश टीचर्स है ना, सबका वो सेम सेम टाइप के होंगे. कैरेक्टरिस्टिक है, सेम ही उनकी पर्सनालिटी है. पीटी And टीचर maths सेम वाले होगा. की पीटी पीटी टीचर की भी बहुत सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है Yeah. पीटी टीचर की. स्पोर्ट्स शू होता है, स्पोर्ट्स शू होता है, स्पोर्ट्स शूज होगा, जीन्स होगा, सीटी लटका रहेगा, एक जीन होगा, बेल्ट होगा, सीटी लटका, और टोपी इंग्लिश पहनते बोलने हैं का तरीका, और इंग्लिश बहुत गंदा होगा. और वैसे ही बोले, मैंने तो नोटिस करा है काफी. हे मेक अ लाइन, स्ट्रेट लाइन. Yeah. यार From my perspective, like in all my schools, I mean especially the significant ones, I've always been very good in 2 subjects, which is English and any computers. We used to call it IP in 11th and 12th. So I've always been very good in that. So my relations with
the English teachers as well as the computer teachers were always good, and they used to pay a lot of attention because I used to be good in that, so they used to pay attention कि भाई हाँ she's good, तो इसमें उसको और कराओ और आगे बढ़ाओ and all. So those have been my best memories, and I think for me, like, those would also be like my best teachers during my school days for those subjects across all schools. Yeah, मतलब favorite teacher I would say, मतलब with every teacher I've been good and अच्छा ही रहा है. मतलब but मतलब my definition of favorite teacher would solely be कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता था, because वैसे तो सब सही ही रहा है मेरा. तो I think one was Babita ma'am. अभी it's so weird, no, when you say वो मैम लग ही जाता है, right? सर मैम लग जाता है. मतलब I cannot say खाली बबीता नहीं बोल सकता, मैम I have to say मैम. हो जाता है. Babita. हाँ, it just happens. So she used to teach history, and उससे पहले SST, बाद में only history. और पुराने स्कूल में मैथ्स टीचर मिनी मैम एंड अनीता मल्होत्रा मैम, साइंस. बाकी फुटबॉल कोच वाज रियली गुड. मतलब उनको ज्यादा आता नहीं था फुटबॉल, बट वो प्यार बहुत करते थे और ख्याल रखते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू गो फॉर कॉम्पिटिशंस एंड ऑल. So he was like a guardian type का, so we were quite close to them. So yeah, बाकी गुस्से वाले टीचर्स भी बहुत होते हैं यार. ऐसा होता है कि एक टीचर कोई ना कोई होता है जो मारता है. पता नहीं इंडिया में ये सिस्टम क्यों है, बट लाइक तुम मार पड़ी है तुम लोग को टीचर से कभी? Yes. मेरे को तो पड़ी है एक, बहुत स्टूपिड रीजंस पे पड़ी है. स्टूपिड रीजन, लाइक ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम किया है, बात कर रहा था, वो था ना क्विक फाइट, वो नहीं, बात कर रहा था बिकॉज शोर मचा रहा है बच्चा, तो मार दो जाके. और एक बार मैंने 2 बार मे आई कम इन बोल दिया था, और उस टीचर का कुछ तो मूड खराब था. लाइक मतलब ऐसा था कि हम 4 लौंडे थे, 4 लोग आए और मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, फिर मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन. तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट आ गई और जाके चारों को थप्पड़ लगा दिया कि डिस्टर्ब कर रहे हो. एक्चुअली पता है, मैंने स्कूल में कभी रियलाइज नहीं करा, बट मैं अभी रियलाइज करूँ कि मारना लाइक शुड नॉट बी, लाइक इट शुड बी, like teachers should be penalized if they are like hitting students. It should not be allowed. It's very wrong. हाँ मतलब ये Very इंडिया में wrong. होता है. हाँ, बचपन में कभी ऐसा रियलाइज नहीं करना. It used to be so normal, right? हाँ मतलब It's हमें लगता है normal मार तो पड़नी चाहिए. खेल से मारेगा या थप्पड़ मारेगा और ऐसे, like it's normal. या जो भी शरारती बच्चे हैं उनको ऐसे हाथ पे खड़ा कर दो. डस्टर वाला याद है? डस्टर हाथ पे मारने वाला, राइट? सर पे तो नहीं. सर पे नहीं, सर पे तो वो दूर से उठा के चौक फेंकते थे. चौक तो फनी है. मस्त लगता था. चौक तो मैं भी फेंकता था, मजा आता था, क्योंकि मतलब ऐसा होता था ना स्कूल में, याद है प्रॉक्सी पीरियड, क्योंकि उस दिन टीचर नहीं आई है या फिर टीचर्स का कुछ मीटिंग हो रहा है, तो सीनियर क्लास के बच्चों को जूनियर क्लास में माइंड करने भेजेंगे कि जाओ मॉनिटर बनो उधर जाके. तो वहां जाके फिर गेम खिलाते थे छोटे बच्चों को. 3 रो बनाया ABC, और जो रो चुप रहेगा उसका 1 पॉइंट, या जो रो कुछ और, मतलब ये बचपन में. और जब हम खुद थोड़े शरारती हरामी हो जाते हैं, तो जो रो ज्यादा शोर मचाएगा उसको 1 पॉइंट, या जो कुछ करके दिखाएगा, गा के दिखाएगा, गेम खिला रहे, तो वहां पे जाके मैं भी चौक मारता था जो कुछ शरारत कर रहा है. चौक इज फाइन, वो तो ऐसे फन की तरह होता था. क्लास में बहुत ही सिली रीजन से मार करने लगा. तो अपना क्लास टीचर था, कन्नड़ा टीचर था, रवि सर. तो ऐसा रहता था कि हर मंथ एक यूनिट टेस्ट होगा, उसके बाद एकेडमिक एक्सीलेंस, मतलब जो 90% ऊपर आएंगे सबको बच्चों को बैज मिलेगा एकेडमिक एक्सीलेंस करके. और एक क्लास को मिलेगा जिसमें सबसे ज्यादा 90 प्लस आएंगे. तो ये क्लास वाइज कॉम्पिटिशन होगा. हर एक क्लास के 2 सेक्शन होते हैं. तो जैसे लेट्स से इस यूनिट टेस्ट में अपना क्लास 7 A और B में ज्यादा नहीं आया, तो फर्स्ट पीरियड अपना कन्नड़ा टीचर होगा, सबको खड़ा करेगा, और जो मतलब लास्ट, मतलब जो टॉपर्स जो हमेशा रहते हैं उनको बुलाकर मारेगा. वो टॉपर्स को मारेगा कि हाँ,
कि let's say तुम लास्ट टाइम 90 अभी 89 लाए हो और लास्ट टाइम 90 लाए थे तो मारेगा वो। वाह तो भाई। बहुत ही सिली रीजन। और एक कि जैसे गर्मी छुट्टी के बाद कुछ कुछ जैसे साइंस प्रोजेक्ट के लिए लाने रहता है ना, चार्ट लेके आओ कुछ बना के या फिर कुछ हाँ मॉडल जैसे। बहुत चूतिया। तो मेरा एक दोस्त ना एक चार्ट ले गया था, और जैसे बाकी उसको भी देखे होंगे जैसे चार्ट लगे रहेंगे तो वहां पर कुछ लोग जैसे डोनेटेड बाय समथिंग समथिंग लिखते हैं ना, तो इसमें भी लिखा डोनेटेड बाय। अब टीचर सब सबमिट कर रहे हैं, ये भी सबमिट किया, उसके बाद टीचर उसको देखा और मारने लग गई। उसको भी समझ नहीं आ रहा कि फिर वो इसलिए मारा था क्योंकि डोनेटेड बाय, मतलब तू डोनेट करेगा तो इतना बड़ा हो गया, फिर को हमारे लैब को तुम्हारे तेरे डोनेशन की जरूरत है। इसको अभी भी समझ नहीं डोनेटेड क्या किया था। क्या ही अरे यार। और हाँ, सबसे जैसे पीटी जैसे सीनियर हॉस्टल होता है ना, वो ग्राउंड के सबसे पास होता है, और जो हॉस्टल को लॉक कौन करेगा, हाउस मास्टर लॉक करेगा बाहर से, और चाबी उसी के पास रहेगा सब लगता है, ताकि कोई बाहर से मतलब भाग के बाहर मत जाए, तो मतलब शरारत ना करे ऐसे। तो पीटी टीचर आएगा 5:30 को ग्राउंड में सीटी बजाएगा, ठीक है, और 5 मिनट बजाएगा, और उसके बाद में सीधा के सीधा सीनियर हॉस्टल घुसेगा और डंडा लेके सीधे बेड में मारने लग जाएगा, धड़ 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 धड़, जो भी मतलब जिसमें बच्चे ऐसे जाते आई थिंक हमारे भी एक बार ऐसा था कि हम लोग क्लास से सब लोग लाइक आई थिंक वी वर लाइक 7-8 पीपल क्लास से बाहर घूम रहे थे, पीछे स्टेज पे जाके सब लोग खड़े हो गए बिकॉज देयर वाज नो टीचर, एंड उसमें लाइक टीचर नहीं था उस पीरियड में। तो खड़े हो गए एंड फिर पकड़ लिया प्रिंसिपल ने और सबको एक एक थप्पड़ मारा था। आई थिंक दैट इज माय लेटेस्ट मेमोरी ऑफ। प्रिंसिपल नहीं, हमारे में प्रिंसिपल तो नहीं मारता। ओ भाई प्रिंसिपल ने मारा था उधर, या तो फनी था, लेकिन आई मीन लाइक बुरा तो लगा था क्योंकि बहुत तेज थप्पड़ मारा था, बट सबको पड़ रहा था तो सब लोग इट्स लाइक वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। बट ये तो है यार, थप्पड़ पड़ता था तो थोड़ा तो हाँ। बुरा तो लगता था यार, थोड़ा ऐसा। बहुत ही सही शॉट मारते थे यार, अरे भाई क्या बाल एकदम। वाल हिल जाते थे उसके। वो जाकिर खान का नहीं है, और लॉन्डो को थप्पड़ पड़ता है तो सबसे पहले बाल ठीक करते हैं। वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है। अरे और तुम्हें ऐसे याद है वो स्केल से पड़ता था, जैसे कि मतलब स्केल से अगर हाँ, कोई मारा है तो ऐसे ऐसे कर लेते ना, ऐसे ब्लेजर को यहाँ पे कर लेते थे ताकि ना लगे नहीं। तो फिर वो पहले बोलते टीचर पूछे कर ना पूरा स्लीव पीछे करा फिर मारेंगे उसको। दिखा ऐसे। भाई मतलब सेडिस्ट होते थे भाई, मजा आता था उनको मारने में। जो मारने वाले होते थे उनको मजा आता था मारने में। और अपना एक इंग्लिश टीचर था, ऐसे करता था, इधर एक हाथ से सपोर्ट करेगा और इधर मारेगा, साफ खड़ा भी नहीं करते ऐसा। मतलब वो ऐसा होता है ना, फॉलो थ्रू से एफर्ट वो कम हो जाए, फोर्स नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट कोलिजन, पूरा नॉन इलास्टिक कोलिजन। वो ऐसा था ना किसी का गलत अगर वो शॉट पड़ी है तो एक और मारेगा। हाँ। तो उसको मजा नहीं हाँ, आता। ये हाथ कैसे पीछे कर रहा है, हाथ कैसे पीछे कर रहा है। सही में एक बहुत ही कॉमन चीज है, तुमने नोटिस किया होगा, मतलब मेरे साइड में तो बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे, कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कॉपी लाना भूल गए, फॉर एग्जांपल, तो कॉपी लाना भूल गए, हाँ टिफिन लाए हो, खाना खाना भूलते हो, हाँ, हाँ। ये क्या मतलब है? मुझे ये तो समझ पता है, ये तो क्या है? जनरल तो में भी ना मेरी मम्मी भी बोलती है कि खाना खाना नहीं भूलनी ना, ये कैसे भूल गई करना। ये तो बहुत ही नॉर्मल है। मतलब एज इफ खाना खाना मतलब बहुत ही वो है कि हाँ मतलब यार वो तो बेसिक नीड है ना। खाना खाना भूलते हो नहीं ना। और हमारे स्कूल में एक और टीचर थी, तो वो बोलना चाहती थी डोंट शो मी योर टीथ, मतलब कोई हंस रहा है तो दांत मत दिखाओ, तो बट वो बोल देती थी डोंट शो मी योर टिट्स, बोल देती थी, क्योंकि उसको टीथ नहीं बोला। और बच्चे और हंस रहे हैं और उसको समझ ही नहीं आ रहा क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। एक बार आई रिमेम्बर हमारे स्कूल में आई थिंक एक दो बच्चों को कुछ पनिशमेंट, मतलब सम इंसिडेंट हैपेंड, उनको 2 बॉयज को कुछ पनिशमेंट मिला था। उनका पनिशमेंट क्या था कि उनका बैग रख लिया स्कूल में और बोला बिना बैग
ये पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट अरे तो आप बिना working hours- ये तो उसका काम हल्का कर दिया तुमने। कि होमवर्क क्यों नहीं किए, बैग नहीं कर रहे थे। बैग यहीं पे था। I don't know, this is so funny. और पनिशमेंट और हाँ मतलब और क्या पिकुलियर पनिशमेंट्स होते हैं, जैसे मेरे को सबसे दर्दनाक थप्पड़ वप्पड़ ठीक है मतलब बुरा लगता था, दर्द एम्बैरेसिंग होता था, बट सबसे दर्दनाक होता था हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ भाई, इतनी देर बहुत सच में दर्द होता है, या फिर ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े रहो क्या है ये? ये एक वो भी होता था ना, मुर्गा बना दो और ऐसे भी वो होता मैं तो था। मेरे स्कूल में मैंने लाइव नहीं देखा है। मेरे आई थिंक मैंने भी ना लाइक बहुत ही छोटी स्टैंडर्ड्स में देखा है, बड़ी स्टैंडर्ड्स में डेफिनेटली नहीं देखा है, बट हाँ वो भी आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक पता नहीं क्यों करते थे उनको, क्या हाँ। व्हाट इज देयर, बहुत एम्बैरेसिंग होता था वो। और हाँ। जैसे ये है जैसे कि खड़े हो जाओ, एक पनिशमेंट है, मतलब लेवल्स होते हैं, लेवल 1 खड़े रहो, लेवल 2 हाथ ऊपर करके खड़े रहो, लेवल 3 लेवल 2 कान पकड़ के खड़े, हाँ कान पकड़ के खड़े रहो, लेवल कान 3 पकड़ इज के खड़े। हाथ वो करके खड़े रहो, लेवल 4 इज हाथ ऊपर करके चेयर के ऊपर खड़े होके खड़े रहो ताकि सबको दिखे, ताकि सबको दिखे, मतलब और एम्बैरेसिंग लगे है ना, और बिल्कुल लाल हो जाता था बंदा कि यार, और मतलब ऐसा है कि पास बाय भी कर रहा है ना कोई, तो ठीक है कोई खड़ा है तो हाँ। उसको लगेगा कोई आंसर दे रहा है कुछ है, बट लेकिन चेयर के ऊपर कोई ऐसे खड़ा है और पास बाय करके दिख रहा है, अरे यार क्या है ये? ऐसी सब सिचुएशंस में अगर आप अकेले बंदे नहीं हो ना जब तक, हाँ तब तक वो कोई सही, तब तक सही है, जब तक आप अकेले बंदे नहीं हो तब तक सही है। 2-3 लोग हो जाए तो हंसी बात आती है सब दूसरों को देख के कि मजा आ रहा है। तो मजे कर रहे थे। पीटी 5:30 होता था, तो अगर 10 मिनट लेट हो गए तो आपको तो लेट हो गए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट में ऐसा रहेगा कि जिधर गर्ल्स खड़े रहेंगी सारी की सारी, तो उधर आपको फ्रॉग जंप करना है, अरे वहां से जाना फिर फ्रॉग जंप करके वापस आना है। ये सब उस जमाने में बहुत एम्बैरेसिंग होता था। उस टाइम तो और वो भी अलग ही कॉन्सेप्ट होता था, याद है? डायरी पे लिख देंगे, साइन करवा के लाना कल। हाँ वो पेरेंट्स से साइन। और मेरे स्कूल में ये भी होता था कि एक क्लास में एक चार्ट होता था जिसमें सबका नाम लिखा रहता, उसमें ब्लैक स्टार दे दिया किसी को, मतलब अगर शैतानी क्या किया। छोटी क्लासेस में ही होता होगा हाँ, राइट, बड़ी बचपन में हाँ बड़े क्लास में बच्चे चार्ट ही एक फाड़ वो देते। जरूर याद है कि एक वो उसको बोलते थे ग्राउंड में चक्कर घुमा के आओ, ग्राउंड के 2-3 राउंड्स काट के आओ, ऐसा भी होता था। और एंड देन दोस वर दोस एक्सट्रीम पनिशमेंट्स आल्सो राइट, कि सस्पेंड ही कर दिया, वो तो कुछ और अलग ही इंसिडेंट हो गया था, आपको वो तो सस्पेंड कर दिया। हाँ, येलो कार्ड से रेड कार्ड सीधा। मैं होने लगा यार। So yeah, that's it guys. This was our second episode from Hold My Drink. We were talking about our time in our schools and we had a lot of fun. And yeah, it's a long video, so I think we'll split it into 2. So thanks for joining us and tune back in for the next episode next week. Thanks guys. Bye. Bye.